session, so you can start to. Thank you, Prabhuji. So, Hare Krishna, Jai Jagannath. So, uh, welcome me, Praneshwar Sachinandan Das Prabhu, me and other organization team. So, we all welcome you all participants here in this Zoom meeting again. So, before I start, let me do a prayer. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलेस्मिन् स्वामिनिति नामधेयं। So, इससे पहले कई सेशन हो चुका है हम लोगों का, जैसे जब से स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट इससे जो लास्ट क्लास था, लाइक इट्स ऑलमोस्ट ए वीक, तो लास्ट क्लास में एंड प्रीवियस टू दैट लास्ट क्लास आल्सो, लाइक हमारे साथ हिज ग्रेस दिनवश्चल प्रभु थे, जो बहुत अच्छा से कृष्ण कथा कर रहे थे, तो भगवत गीता के आधार पे। सो आज हम भी कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब जैसे प्रभु जी ने बोले कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। सो एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम द वेरी आउटसेट दैट जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ अभी कुछ नेक्स्ट हाफ एन आवर और 1 आवर सो everything I'll try to tell you from Bhagavad Gita or Bhagavatam, nothing from outside. So this very topic, like how to control our mind, it like to us हमको ऐसा लगेगा कि मतलब ये बहुत इजी भी है और टफ भी है, because the entity माइंड एक ऐसा चीज है जो हमारे दोस्ती भी हो सकता है और हमारी सबसे बड़ी एनिमी भी हो सकता है, हमारे सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकता है। सो अगर इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड ways, so then definitely our mind will be behaving as friend to us. If it is not as per the prescribed ways, then definitely it will behave as our enemy. So then what is that prescribed way? और prescription कहाँ से आता है? So definitely when anything we talk about something prescribed by either sadhu or shastra or guru. We usually take these things, साधु शास्त्र और गुरु। और शास्त्र की बात करते हैं तो फिर हम गीता और भागवत की बात करते हैं। Hare Krishna Prabhu, just Hare Krishna. Yes. Oh, just I am telling that can you use your headphone, so little bit sound will be increased. So sound is little bit slower. अभी नहीं है ऑफिस में। Okay. So you just please little bit louder. Huh? The Yeah, sound sure. is little bit. Sure, Paul. Okay. Based on the reference from sadhu, shastra, and guru, so we'll say that what is the prescribed way of living and what is non-prescribed, what is not prescribed. So here the prescribed ways, when we are thinking of it, and with respect to our status of mind, to consider it as our friend or enemy. So ये डिपेंड करता है कि हमारी consciousness कैसा है. So consciousness, हमारी consciousness, it is driven by three things. By one thing that is called mode of nature. And mode of nature, there are three types of modes of nature. एक mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Sattva guna, raja guna, and tama guna. So depending on this thing, like whether we are in sattva guna or raja guna or tama guna, then we'll say that yes, in what state of mind we are. And based on that, then we can say if our mind is whatever way it is working, so वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है. अच्छा कर रहा है तो obviously हमारी फ्रेंड जैसे आउटपुट मिलेगा, फ्रेंड जैसे ही हमारे साथ बिहेव करेगा. If it is not doing good to us, then definitely it's our enemy. So what scripture says, and we also know that from our day-to-day experience,
अगर रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं कोई भी, so our consciousness is not pure. Our consciousness is not pure, and then all our activities will not be good. So somewhere or other, so we will find some problems in our way of living. So if our mode of our material mode of nature will be in mode of goodness, sattva guna, then sattva guna is the like quality that it gives us righteous thing. So, but it's again it's not sufficient. So sattva guna alone can't give us peace of mind, and so sattva guna, it has to be like completely purified. It's like the mm, शुद्ध सत्व गुण. If that वो शुद्धता नहीं है, सत्व गुण में भी शुद्धता नहीं है, then also it will not be sufficient to get the mode of that happiness, the real happiness, absolute happiness. अगर ये नहीं है हमारे साथ तो हम नहीं कर पाए. तो फिर ये जो चीज है, like how to control our mind, it's so if we talk this topic particularly with respect to this mode of nature, then it looks like very easy, very difficult. अगर हम सत्वगुण में रहना चाहते हैं तो हम अगर ऐसे सोचेंगे, then okay, we can do that, but is it really simple? But नहीं लगता हमेशा सत्वगुण में रहना नहीं लगता, क्योंकि देखो सब कुछ हम भगवत गीता के आधार पे बोल रहे हैं. और भगवत गीता कब बोला गया था? जब कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड के बीच में. और कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में जब देखो, उससे पहले कृष्ण एंड अर्जुन दे वर एक्चुअली दो like very good friends. So they used to share, they used to stay together, they used to share food even from same plate. तो इतना साथ में रहते, साथ में घूमते थे. तो भगवत गीता की कथा कृष्ण अर्जुन को अपने घर में बता सकते थे. लेकिन why he took him intentionally to the middle of the battlefield? Because that was a teaching to us. क्योंकि हमारे जो लाइफ है, तो हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ है, it's no less than a Kurukshetra battle. Every day, every moment, so something or other is happening with us. We are fighting for something. We are actually aiming for something. So that is like we are battling with, if not with anybody, with ourselves, our senses. So that is no more not less than a Kurukshetra. And Krishna has given all the life tips, do's and don'ts in to Arjuna in Battle of Kurukshetra. It's like just like an instruction to us. ये सारे हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस थे. तो वही कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में अर्जुना ने पूछे थे कृष्ण को, तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है. और जो कि कृष्ण ने उनको अप्रिशिएट करके थे, ये जब कृष्ण अर्जुन ने ये पूछे थे कि यस, माइंड को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, और बट ये हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है. विथ प्रैक्टिस ये हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिस अगर करनी है तो क्या प्रैक्टिस करनी है, वो चीज है, क्या प्रैक्टिस करनी है. तो प्रैक्टिस ये करनी है कि हमारे दिमाग से, हमारी माइंड से जो मतलब जो अपना कॉन्शियसनेस है उसको शुद्ध करना है. तो कैसे करेंगे? और इसके लिए मतलब कृष्णा ने भी बोले हैं, साधु शास्त्र गुरु के रेफरेंस में मैं बोलने जा रहा हूँ. देखो कि हमको ये सब जो कंट्रोल ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बोल सकता है हम अगर माइंड की कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल किसको करें? जो अनकंट्रोल्ड है, राइट? या फिर जो चीज हम चाहते हैं कि वो अनकंट्रोल ना हो. अगर ऐसा नहीं कि हम अनकंट्रोल, ये अभी कंट्रोल्ड है तो हम सब कुछ हो गया, देन वी विल नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग, देन वी आर प्योर एंड वी आर शुद्ध सत्व में है, तो हमारी और माइंड को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं. नो, इट हैज टू बी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही हो या फिर जो अनकंट्रोल्ड स्टेट में है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसके लिए तो हमको करना क्या है, और ये हम करना क्यों चाहते हैं? जस्ट फॉर वन थिंग, टू गेट दैट रियल हैप्पीनेस. तो कुछ दैट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, वो सुख के लिए हम ऐसा करते हैं. बट ये सुख के लिए हम कर रहे हैं,
बट सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये दुनिया में, ये जो जगत में हम रह रहे हैं, जो मैटेरियल वर्ल्ड में हैं हम अभी, तो ये मैटेरियल वर्ल्ड में, ये भौतिक जगत में हम सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन कृष्णा ने क्या बोल दिए जो भगवत गीता में, ये जो जो भौतिक जगत में हम हैं, जो मैटेरियल वर्ल्ड में हैं, दिस इज नथिंग बट दुखालय। जब हम मंदिर में जाते हैं हम उसको देवालय बोलते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं हम उसको विद्यालय बोलते हैं, और हॉस्पिटल जाते हैं हम उसको चिकित्सालय बोलते हैं। बट कृष्णा ने ये पूरा मैटेरियल वर्ल्ड को दुखालय बोल दिया। दुखालय मतलब यहाँ पे खाली दुख ही दुख है। तो तो बट कृष्ण ने फिर बोले कि ये दुखालय में भी हमको सुख मिल सकता है, ये दुखालय में भी हमको सुख मिल सकता है। कैसे? अगर ये दुखालय में हम अगर सुख को मतलब अगर हम जो प्रिस्क्राइब्ड वेज है, जो डूज है, जो डोंट्स है, उसको फॉलो करें। सो सो हम कैसे कर पाए? हम कैसे कर पाए? तो अगर ये दुनिया को हम देखें कि ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो हम अकेले चाहें तो भी फिर भी नहीं हो सकता। हम अकेले चाहें फिर भी नहीं हो सकता। हम ट्राई करें और हमारे पूरे सराउंडिंग भी ट्राई करें। अगर हमारे सराउंडिंग ट्राई नहीं कर रहे हैं, देन हम खाली अकेले ट्राई कर रहे हैं, देन समवेयर अदर ऑल्सो हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर इसको कैसे करें? सो ये साधु शास्त्र और गुरु ने बताया कि भाई हम जहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करें, जो डूज को फॉलो करें, जो डोंट्स को फॉलो, जो डोंट्स डूज और डोंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हमारे सराउंडिंग में जितने उनको भी बताएं, उनको भी बताएं, तो हमारे सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये इट इज नॉट ए लाइक वन डे बिजनेस कि आज हम स्टार्ट किए तो कल हमको हैप्पीनेस मिल जाएगी। नहीं, इसको ओवर द टाइम, ओवर द लॉन्ग रन हमको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा अभी। सो एंड ये कंट्रोल क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिकॉज ये हमसे अकेले से नहीं हो गया, हम सबको यूनाइटेडली वी हैव टू वर्क फॉर इट। सो yes, the art of mind control. So I'll just go through some slides. So modern advanced society looks for this type of luxurious cars. I don't know honestly which model, what this car is, which brand, I don't know honestly. So but अब सबके मन में कुछ रहता है कि luxurious car को अवेल करने के लिए. And but there are some hidden facts. See, in this material world, so there are certain factors which are always on rise. So keep on counting them: violence, unemployment, murder, suicide, corruption, mental stress, rapes, divorce, ड्रग एडिक्शन। तो ये सारी चीज हमारे सराउंडिंग में अगर होता रहे तो हमारी कॉन्शियसनेस, अगर हम ये पूरे दुखालय में हम थोड़ा सुख के लिए सोच रहे हैं कैसे हाउ टू गेट द रियल हैप्पीनेस, और हमारे सराउंडिंग में ये सब हो रहा है, तो हाउ टू गेट दैट देन? तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या प्योर रह पाएगी ये सारे सिचुएशन में? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड पर्टिकुलरली फॉर वी ऑल गृहस्थs। सो गृहस्थ यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ अस आर गृहस्थs, and those who are staying in temple, brahmacharis, acharyas, so उनकी केस डिफरेंट है। so they live in temple, so surrounding, so they are always surrounded with other devotees, so always talk about Krishna and Jagannath and their pastimes। बट हम लोग गृहस्थ हैं, हम हमारी ऑफिस जाते हैं, फिर कहीं पे कुछ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो वहां से आते हैं, तो हमें एवरी डे एवरी मोमेंट जब घर से निकलते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वी फेस। तो गृहस्थ उन लोगों का जो टेम्पल में रहते हैं, तो वो मतलब ऐसे बोल सकते हैं वो उनका गाड़ी बस एक गियर पे चलता है, बट हमको शुद्ध सत्व में रहने के लिए हमको मतलब हमारी गियर हमेशा चेंज करना पड़ेगा हमारी गाड़ी की। देखो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस के जो एनवायरनमेंट है उस टाइम में जैसे लाइफ जीनी है उस टाइप का रहना है। घर आए, चलो हम आगे अपने जो एक्चुअल चीज में रहना चाहिए वैसे।
तो धोती तिलक लगाए, तो थोड़ा जपा किए, और भगवान को खुश करने के लिए जो कुछ भी जो डूज एंड डोंट्स हैं वो फॉलो करने के लिए ट्राई किए. So every moment for गृहस्थs, like I'll say, so हमारी गियर चेंज करनी पड़ती है. And if you look at this particularly, all these like entities which are like shown on the screen, so देखो हमारे चारों ओर ऐसे हो रहा है. सुसाइड केस देख लो, कितने सुसाइड हो रहे हैं. अभी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा हस्ती हमारे फिल्म इंडस्ट्री से गए, बॉलीवुड से. So whatever may be the reason, we don't know, whatever may be the reason, but that is not the ultimate things which should happen with anyone. So, but ये क्यों होता है? Because of too much of mental stress, because of anything. But ये नहीं होना चाहिए. So, but going ahead, so see, communal violence everywhere it is happening around us. Public unrest, तो इस टाइप के चीज हो रहे हैं हमारे चारों ओर. वार्स हो रहे हैं अभी. रिसेंटली हम देखें इंडो चाइना बॉर्डर में क्या हो रहा था, टेररिज्म हो रही है. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टेडीली इंक्रीजिंग एवरीवेयर. ऐसा नहीं कि आज अगले साल जो लास्ट ईयर जो था अभी इस साल कम हो रहा है. तो ईयर बाय ईयर वो डे बाय डे ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है. सो वी हैव टू बी सीरियस. एंड टाइम मैगजीन पोल सेज एक्चुअली व्हाट आर द प्रॉब्लम सोसाइटी में. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है? सी व्हाट द पोल सेज. First thing is crime and second is lack of morality. So इसके लिए हम क्या करें? देखो, I'm just skipping certain things. Drug users, that they are also increasing. Number of divorces, they are also increasing in every countries. Average number of suicides, they are increasing around us. So then why there is much chaos and confusion in society? किस लिए ये सारे चीज हो रहे हैं? Srila Prabhupada explains it. With pack of dogs in a room, how can you expect peace? अगर सारे लोग जो नहीं करनी चाहिए, जो इस टाइप के जो एनवायरनमेंट जो फ्यू स्लाइड्स बैक जो मैंने आपको दिखाने के लिए ट्राई किया, अगर ये सारे चीज हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम पीस कहाँ से ढूंढ पाएंगे? पीस को कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? So how can you expect peace and happiness in all this situation? But solution to all this problem is controlled mind, and which Krishna has clearly said in Bhagavad Gita. तो ये हो पाएगा धीरे धीरे, but we have to follow the process. देखो ये सारे चीज जब होता है, हम कुछ की लेकिन हमारे सराउंडिंग करता है, हमें दुख मिल जाता है. अब देखो, सुख एंड दुख दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. अगर दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा डेफिनेटली. और दुख मिलने के लिए we didn't do any endeavor for that. कोई दुख मिलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एंडोवर करते नहीं, बट स्टिल हमको दुख मिलता है. तो फिर सुख के लिए हम इतना एंडोवर करने के लिए जो सोचते हैं, तो क्या सही में वो हमें सुख दे पाएगा? सुख मिलने के लिए क्या सोचते हैं हम? सुख के जो पैरामीटर्स हम सोच के बैठे होंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी, बहुत लग्जरियस कार हो जाएगी, हमारे पास, मेरे पास बहुत बड़ा एक बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा एक फ्लैट हो जाएगा, बहुत बड़ा अपना एक घर हो जाएगा. तो इज दैट द रियल हैप्पीनेस? मेरे पास एक बहुत अच्छा सा लग्जरियस कार हो जाए, मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ वो ऑफिस में वो अकेला मेरा कार है, और ऐसा किसी के पास नहीं होगा. अगर ऐसे मैं सोचूंगा तो कितने दिन में उससे खुश रहूंगा? मैक्स टू मैक्स, जब तक उसी टाइप का कोई और एक कार आके मेरे कार के साइड में खड़े नहीं हो जाता. और वो होने में टाइम नहीं लगता. फिर हम सोचेंगे मेरे कार की कलर रेड होने है और उसके साथ कोई कंपेयर नहीं हो सकता. तो नेक्स्ट डे और एक रेड कार भी उसी ब्रांड की, उसी मॉडल की आके खड़ी है. फिर क्या हुआ? इज इट द रियल हैप्पीनेस? कि आज जो हैप्पीनेस है कल वो हैप्पीनेस नहीं रहेगा. तो फिर इतना एंडोवर क्यों? जो चीज एक्चुअली हमको, ये चीज चाहिए, ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज चाहिए, बट that is not the real happiness in any sense. So what scripture says, before understanding the mind, let's answer the most fundamental question. ये लास्ट फ्यू क्लासेस में इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई थी हमारी.
But this is very fundamental question. Everywhere, in almost all lecture, Prabhupada used to say this thing. He used to ask his devotees, like he used to ask his disciples, the same thing: who am I? Am I this body? Am I this hair? Am I this hand, foot, nose? So, क्या बोल सकते हैं? So, some scientists says it's like the constituents of the human body, like they analyzed and they said like you must be somebody certainly much superior to the filthy place, bones, mucus and stool. और हमारे बॉडी में ये जो है कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये जो कंपोनेंट्स हैं, so इसको मिला के it's like composition of different you can say materials or say some minerals or whatever. So is it our real identity? अगर मेरा नाम आज अटल बिहारी हरिचंदन मेरे पेरेंट्स ने नहीं रखे होते तो कुछ और रखे होते, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, तो I would have been known by that name among you all friends. तो मेरा रियल आइडेंटिटी, मेरा नाम अटल बिहारी हरिचंदन नहीं है। फिर मेरा नाम अटल बिहारी हरिचंदन, दिस इज नॉट माय रियल आइडेंटिटी, देन हु एम आई? ये क्वेश्चन हम सबको पूछनी चाहिए अपने को। So last what scripture says, okay, we'll go to that. So are you just a bag of like rupees 110 worth chemicals? And Krishna says in Bhagavad Gita, Dehinosmini yatha de kumara joganam jara tatha de antara prapti dhiras tatra namu yat. I'll just keep this thing. I'll just because yes. So जो कृष्ण बोले हैं भगवद गीता में, देहिनोस्मिन् यथा दे कुमारम जौवनम जरा. So kumaram jovanam jara, the childhood, then youth, then old age, it keeps on changing. तो हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा आइडेंटिटी चेंज हो रहा है. The real identity, who am I? So scripture says we are Atma, soul. And then if you are Atma, then there is also like Paramatma, super soul. Krishna is also there, super soul. So then if you understand this thing, we are soul and we are not this body, we are not this name Atal Bihari Harichandan, and we are, I am Atma, I am a soul, and there is a super soul which resides within us also. And then what is the relation between us, soul and super soul? There must be some relationship then. And then if you can know what is the relationship, then we must have a particular duty assigned to us, like as a soul, what should we do to the super soul? And this, what to do, what not to do, that is explained in Bhagavad Gita very clearly by Krishna. And if you can follow that, then definitely we can control our mind. So Krishna says, for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. So there is nothing like we can't say yes, not it's applicable to some people, not applicable, and not applicable to some other people. It's not like that. What Krishna said, it is applicable to everyone. So जब मैं बोल रहा था कि हम कुछ एंडोवर करते हैं, नहीं करते हैं दुख पाने के लिए, बट स्टिल दुख आ जाता है हम में, लेकिन सेम एंडोवर हमको नहीं करनी चाहिए ये सब मटेरियल हैप्पीनेस के लिए. वो मटेरियल हैप्पीनेस हमको चाहिए फॉर आवर लाइक द बेसिक नीड्स, नॉट बियॉन्ड दैट. हमें कुछ मतलब अपना डे टू डे लाइफ में हमारे बेसिक नीड्स रहते हैं, उसके लिए जितना चाहिए उतना, लेकिन उससे ज्यादा अगर चाहिए सो वो एक्चुअली हमारी सुख नहीं रहेगी, हमारी दुख हो जाएगी फिर. तो इसके पीछे कृष्णा बोलते हैं, तो ये दुख जो मिलता है, हम खुश ढूंढने के लिए जो एक्चुअली वी आर कृष्ण लाइक
हम खुश ढूंढने के लिए हम जो एंडेवर करते हैं वो हमारे लिए दुख साबित हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज कृष्णा से जब भी हम मतलब बोलते हैं ना सोचती ना कांक्षती, मतलब अगर किसी के कोई भी एक चीज के लिए जो हमारे पास है तो वो हमसे ना खोए, या फिर हमारे पास नहीं है वो कैसे हमको मिल जाए। ये दोनों के लिए अगर वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, जो हमारे पास नहीं है वो हमें कैसे मिल जाए, और जो हमारे पास है वो हमसे कभी खो ना जाए। वो ये दोनों चीजें सोचती ना कंगति, अगर हमसे वो खो गया इन केस फॉर एनी रीजन, देन ना सोचती ना कांक्षित, देन वी डू लैमेंट ओवर दैट। ये लैमेंटेशन, एंकरिंग एंड लैमेंटेशन, ये दोनों चीज एक्चुअली हमको रॉन्ग वे में ड्राइव करते हैं। देन इफ वी गो कीप ऑन हैंकरिंग आफ्टर सर्टेन थिंग्स and then lamenting over the situation when we lose those things from us, then this we can say the real happiness will never come to us. तो हमारे अंदर हमेशा रजोगुण और तमोगुण आ जाएगा और हम वही रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे। तो फिर क्या करना है? कृष्ण ने सारी चीज बोल दिए, करना क्या है? कृष्ण ने बोले कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, आई डोंट रिमेम्बर द श्लोका। सो व्हाट ही सेज लाइक, अगर कोई मेरे को शुद्ध मन से मतलब हमेशा शुद्ध चित्त से प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हमें प्रे करता है, देन उसका जो कमी है उसके लाइफ में वो मैं सप्लाई करता हूँ उसको, और जो जो है उसके पास वो अक्षुण्ण रहता है, वो कभी उससे खो ना जाए। सो आई टेक केयर ऑफ दैट। कृष्णा डिक्लेयर किए, आई मतलब वो बोले आई डिक्लेयर, सो वो उसके पास जो तुम्हारे पास जो नहीं है मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, जो है वो कभी खुद ना हो जाए। इफ वी डू प्रे टू हिम सिंसियरली एंड डिवोटेड। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा जगन्नाथ जी की कथा बोलूं, बिकॉज कृष्णा एंड जगन्नाथ दे आर नॉन डिफरेंट। सो पुरी में जगन्नाथपुरी में अभी रथ यात्रा के दिन है, तो सारे जगन्नाथ जी के भक्त लोग बहुत खुश होंगे कि रथ यात्रा हुआ है कल। तो अभी जगन्नाथ जी के ऊपर एक ये जो पर्टिकुलर श्लोक है कि आई पर्सनली कैरी ऑल वट एवर माई डिवोटी नीड इन हिज लाइफ, अगर उसको वो चीज की जरूरत है, और अगर कोई उसकी उसकी जो बहुत चीज जो चीज उसको जरूरत है उसके पास वो हमेशा रहे, और वो मैं दैट थिंग ऑल्सो आई टेक केयर। सो ये श्लोक है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोले, लाइक वो जो बोले वो करते। इट्स नॉट लाइक सम सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, वो कुछ बोले और इलेक्शन खत्म वो भूल गए, नहीं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कथा मैं बोलना चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब थे। वो भिक्षा करके अपना मतलब जो अपना फैमिली लाइफ चला रहे थे। उनके घर पे उनके फैमिली बोले तो उनके वाइफ माता जी थे, वाइफ थे, और उनके 3 चिल्ड्रन थे, 3 चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ एंड हिमसेल्फ। सो ये 5 लोगों की फैमिली थी उनकी। और उनके डे टू डे बिजनेस ये था कि सुबह उठ के वो घर से निकल जाते थे, कहीं पे भी जगन्नाथपुरी में श्री क्षेत्र में वो कहीं पे भी बैठ जाते थे, और दिन भर वो भगवत गीता पाठ करते थे। और रात और जो पासिंग बाय जो जो लोग वो साइड में जाते थे वो सब लोग मतलब कोई खुशी से जगन्नाथ भगवत गीता कथा सुनते थे और उनको कुछ पैसा देते थे या कुछ भी देते थे खाने को। तो वही उनका था दिन का जो अर्निंग्स। और वो खुद जाके भिक्षा नहीं करते थे, वो कहीं पे भी बैठ जाते थे, बस भगवत गीता पाठ करते थे। अब भगवत गीता पाठ करते समय तो उनका क्या होता था कि तो इसीलिए लोग उनको गीता पंडा बोलते थे, गीता पंडा, क्योंकि वो हमेशा भगवत गीता में मग्न रहते। और जब भगवत गीता में मग्न रहते थे तो क्या हुआ, एक बार श्री क्षेत्र में बहुत लगातार 3-4 दिन तक बारिश होने लगा। इतना बारिश हुआ कि वो बाहर नहीं जा पाए। तो बाहर नहीं जा पाए तो गीता पंडा ने फिर बाहर नहीं जा पाए तो कुछ उनको पैसा भी नहीं हुआ, उनके घर पे कुछ ऐसे सेविंग्स नहीं थे कि वो उनके बच्चों को और उनके वाइफ को कुछ खिला पाए। 3-4 दिन तक क्या खाएंगे, घर पे कुछ भी नहीं था। तो जब उनके वाइफ ने बोले कि अब तो कुछ करो, बच्चे अभी भूखा सो रहे हैं, पानी पी के खाली सो रहे हैं, अब कितने दिन सोएंगे, बच्चे भूखे सो सो के मर जाएंगे।
तो गीता पंडा ही वाज लाइक उनका जगन्नाथ जी के ऊपर पूरा विश्वास था और जगन्नाथ जी के वो बहुत बड़े भक्त थे और इतना विश्वास था तो वो विश्वास के साथ वो उनके वाइफ को बोलते थे एवरी टाइम व्हेन उनके वाइफ यूज्ड टू आस्क हिम लाइक कुछ तो करो ऐसे घर पे बैठने से क्या होगा तो एवरी टाइम ही यूज्ड टू से योगक्षेमम वहाम्यम कृष्णा ने बोले ही ऐसे तो हमें जो जरूरत है तो जरूरत के टाइम में वो दे देंगे तो तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो जबकि इतना गरीबी में थे फिर भी वो ऐसे बोल रहे थे जब ये सिचुएशन हुआ और ये सिचुएशन में ऐसे भूखे सो रहे थे और उनके वाइफ ने आके बोली तो गीता पंडा ने सेम श्लोका फिर से रिपीट किए तो उनके वाइफ जाके जो भगवत गीता में वो श्लोका था 9.22 वो श्लोका को काट दिया हाथ से बोले कि ये कृष्ण ने जो बोले भगवत गीता में 700 श्लोका है सारे 700 श्लोका 699 श्लोका में भी करेक्ट बट ये श्लोका कभी सही नहीं होगा अगर ये श्लोका सही है तो हमारे घर में मेरे बच्चे भूखा नहीं सोते तो क्या कृष्ण को नहीं पता चलता कि हमारे घर में भूखा सो रहे हैं और मेरे पति जो है वो बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यम कृष्णा ला के देंगे यू डोंट वरी तो उन्होंने काट दिए तो गीता पंडा को बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने इसलिए दुख हुआ कि वो भगवत गीता में ऐसे लाइन खींच दी इसलिए नहीं उनको लगा कि जैसे कृष्ण के जीव को काट दिए वो कृष्ण ने जो बोले थे उनकी लाइन को काट दिए उन्होंने जाके फिर घर से निकल गए वही बारिश हो रहा था तभी भी घर से निकल गए जाके कहीं पे कुछ भगवत गीता उनका एक ही काम रहता है उनका एक ही बिजनेस रहता है भगवत गीता पाठ करना बाहर नहीं उस दिन भगवत गीता भी नहीं लिए ऐसे ही निकल गए घर से जाके कहीं पे बैठे जगन्नाथ जी के ऊपर मेडिटेट किए मन में बहुत उनको मतलब पेन था इसीलिए कि उनके वाइफ ने आजीब लाइक कृष्णा के ही जीव को काट दी तो फिर शाम तक वो अपने मन से जो भगवत गीता जितना उनको याद रहता था इतने दिन से पढ़ रहे भगवत गीता पाठ कर रहे थे लेकिन कौन था उतने बारिश में कोई भी नहीं मिला उनको जो कुछ पैसा थे तो खाली हाथ आए तो सोच रहे थे जाने के बाद फिर सुनेंगे फिर पड़ेगा ऊपर कि खाली हाथ आ गए कृष्णा ने कहा कुछ दिए ये सब सोच के आ रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं तो जहाँ पे कृष्ण को कुछ जगह नहीं मिला जहाँ पे कृष्ण को ही काट दिया कृष्ण के जीव को काट दिया ऐसे सोच के आ रहे तो इसी बीच क्या हुआ जैसे गीता पंडा ने बाहर गए वही बारिश में तो उसी टाइम में एक छोटा बच्चा एक बुलक काट में मतलब भर भर के कितना अनाज कितना जो राशन है जो जितना कितना फ्रूट्स है कितना ड्राई फ्रूट्स बहुत भर भर के तो सारे लाके गीता पंडा के घर पे पहुंच गए तो वो जाके उनके माताजी को बोले कि ये सब रख दो और गीता पंडा के जो आपके हस्बैंड है उनके बहुत बड़े मित्र हैं और उन्होंने ये सब भेजे तो वो बोले कि भाई मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा कोई रिच वित्तशाली मतलब फ्रेंड है वो हमें नहीं पता वो हमें कभी नहीं बताए बट एनी हाउ उनको जरूरत था तो जो इतने लेके आए तो बोले कि ठीक है रख दो और आउट ऑफ कर्सी ओनली वो उनको पूछे कि थोड़ा बैठो वो जब तक वो नहीं आते तब तक बैठो और वो आने के बाद मिलके जाना तो बोले नहीं नहीं मेरा बहुत काम है मेरा मास्टर जो है वो मेरे को मारेगा नहीं तो मेरे को जाना पड़ेगा ठीक है थोड़ा एक गिलास पानी तो पी लो ये होता है सारे ओडिया फैमिली में ये तो होता है कोई भी फैमिली हो कोई घर पे आते थोड़ा कुछ दे ना दे थोड़ा पानी तो दे ऑफर करे तो वो भी पानी ऑफर किया कि थोड़ा पानी पी के जाओ नहीं 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 मैं आज नहीं पी सकता उन्होंने पूछे क्यों ना ना मेरा जीभ कट गया आज मेरा मास्टर ने मैं ठीक से काम नहीं कर रहा था बोल के मेरे को मेरा जीभ काट दिया तो मैं आज नहीं पी सकता पानी तो ऐसे बोल के वो वहां से निकल गए तो फिर जब गीता पंडा आए देखे कि घर पे बहुत कुछ चीज रखा हुआ है और उनके वाइफ बहुत खुश थे बोले और ये उनके वाइफ को कुछ पूछने से पहले उनके वाइफ उनको पूछे कि आपके इतने अच्छे मित्र थे और वो आपके दुख नहीं देख पाए और इतने सारे चीज भेजे आपने तो कभी वो मित्र के बारे में नहीं बोले मेरे को तो गीता पंडा सोचे कि मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं जो इतना चीज मेरे घर पे भेज दे जो ये से बोल रहे हैं तो कौन हो सकता है ऐसे तो जैसे मैंने पहले से बोला था कभी भी हमारे साथ कुछ होता है अगर वी वांट टू गेट द रियल एडवाइस वी वांट टू गेट द रियल लाइक चीज की हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो वी शुड अप्रोच साधु शास्त्र एंड गुरु तो वो कभी हमें गलत डायरेक्शन नहीं दे सकते गलत एडवाइस कभी नहीं दे सकते और तभी वो सिचुएशन में गीता पंडा के पास कौन थे कोई नहीं थे शास्त्र था भगवत गीता था उन्होंने घर पे जो भगवत गीता थे
डायरेक्ट गए भगवत गीता को देखने के लिए, जस्ट टू नो कि व्हाट हैपेंड। तो देखो जगन्नाथ जी की कृपा थी, तो उन्होंने जब भगवत गीता खोले, डायरेक्टली वही पेज खोली जो पेज में ये श्लोका में मेंशन था, योगाक्षेमम वहाम्यहम वाला। और सुबह जो देख के गए थे वो लाइन खींच लिए थे, वो एक लाइन खींच लिए थे माता जी ने, वो योगाक्षेमम वहाम्यहम वो लाइन पे, वो लाइन अब नहीं था। तो गीता पंडा ने बोले कि ये लाइन जो आपने खींचे थे सुबह, वो लाइन कहाँ गया? जो बच्चा आया था वो वहीं पे बैठा था, वो भी वो गीता को छुआ था, कुछ तो किया होगा उन्होंने, मेरे को नहीं पता। तो गीता पंडा ने पता उनको पक्का कंफर्म हो गए, जो आए थे, ही वाज नन अदर देन जगन्नाथ, वाज नन अदर देन कृष्ण। तो कहने का मतलब है कि जब हम सिंसियरली डिवोटेडली कृष्ण को प्रे करते हैं, देन कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सो ये सारे सिचुएशन क्यों बोलता हूँ, तो ये क्यों बोला कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए, हम माइंड को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? थोड़ा हैप्पीनेस मिलना, और ये थोड़ा हैप्पीनेस हमको जब मिलना चाहते हैं, तो हम अगर विल रन बिहाइंड द मटेरियल थिंग्स, देन वो हमें रजोगुण और तमोगुण में हमेशा रहना पड़ेगा, एंड देन विल नेवर कम आउट ऑफ द सिचुएशन। वो हमें चाहिए, जितना चाहिए उतना करने के बाद बाकी टाइम वी शुड थिंक ऑफ सम हायर थिंग्स फॉर सम हायर कल्चर, कि हमको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस मिले। हाउ? बाय प्लीजिंग हिम, बाय प्लीजिंग कृष्ण। उन्होंने और एक श्लोक में बोले कि कैसे करना है ये सब, कि व्हाट एवर वी डू, लाइक सॉरी श्लोकास याद नहीं आ रहे यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यांसि कौन्तेय तत् कुरुषो मदर्पण। जो भी करना है, जो भी खाते हो, जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो, यू ऑफर टू मी। देन देखो सब कुछ ग्रेजुअली यू विल गेट प्यूरिफाइड, द शुद्ध सत्व आ जाएगी। और ये कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग सो आवर सेंसेस विल बी कंट्रोल। ऐसा नहीं कि हमारे सेंसेस को बंद कर दे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल से यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददास्यम। तो क्या करना है? मान लो आज मेरे को पनीर खाने को मन है, तो मैं खाली पनीर लाऊं और बस खा लूं। उससे पहले अगर मैं जगन्नाथ जी को ऑफर भगा करूं, ऑफर लगा, ऑफरिंग करके जब प्रसाद बनी तो उसको लूं, सो दैट मेक सेंस। तो इससे क्या होता है? तो उनके साथ हम जुड़े रहते हैं। छोटी सी चीज है, हम डायरेक्ट कुछ लाए, कुछ खाए नहीं, बस हम पहले ऑफरिंग किए, भोगा लगाए, और वो प्रसाद बनी, देन वो प्रसाद को ऑफर किए। मान लो आज हम मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं पे कुछ अच्छा चीज मिला, हम सोचते हैं हम घर लेके जाएंगे, हम मेरे वाइफ के लिए या फिर गर्लफ्रेंड के लिए या किसी के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन कुछ चीज अच्छा दिखा तो ये मैं लाके मेरे जगन्नाथ जी का अल्टर मेरे को जगन्नाथ जी को लगाऊं, ये ड्रेस आज मैं जगन्नाथ जी के लिए खरीदूं, या फिर कहीं पे फ्लावर्स देखे, कुछ बहुत सुंदर सा फ्लावर है, आज ये फ्लावर लेके जगन्नाथ जी को दूं। तो ये छोटी छोटी चीज एक्चुअली एड्स ए लॉट टू आवर लाइफ। सो ऐसे करने से क्या होगा? ग्रेजुअली विल गेट अटैच्ड टू हिम एंड आवर सेंसेस विल गेट ग्रेजुअली प्योरिफाइड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कुछ हटके करना होगा। थिंग्स आर सिंपल, थिंग्स आर सिंपल। सो उन्होंने बोले कि बस जो भी करना है उन्हीं को ऑफर करके करो। और ये कैसे हो सकता है? अगर ये कैसे अच्छे से हो पाए? अगर इफ यू द सेम माइंडेड पीपल विल बी अराउंड अस, अगर सब हम लोग सब मिलके यही कर रहे हैं, सारे के सारे, हम मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, और हमारे मतलब रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सब लोग कर रहे हैं, then we'll never go away from this all these practices. तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको करने का काम किसकी है? हमारी। तो हम उनको बोले, इसमें हमारी सेल्फ इन्वॉल्व है, क्योंकि हम इसमें, आप कोई भी बोल सकता है हम कितना सेल्फिश है, हम खुद खुश रहना चाहते हैं इसलिए उनको लाते हैं। भाई हम खुश रहेंगे वो भी आ जाएंगे, वो भी खुश रहेंगे, उनको दुख नहीं देंगे हम। तो इसलिए एक छोटी सी चीज है कि अब लोग बोलते हैं ना कि दूसरे के दुख देख के लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए बहुत साधु लोग बोलते हैं ये एक बहुत बड़ी चीज है कि दूसरे के दुख देख के अगर हमको दुख नहीं लग रहा है, वो कोई भी हो, उसके दुख देख के अगर हमको दुख नहीं लग रहा है,
देन भाई हम कितने दिनों से, कितने सालों से भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ जी की कितने भी भजन गाए, कितने भी अष्टकम गाए, तो क्या होगा फिर? तो मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब हाथी के स्नान जैसा, नहाए फिर आए फिर धूल झाड़ दिए अपने ऊपर। तो ये सारी चीज धीरे धीरे अपने, आज क्या होता है, दूसरे के दुख देख के हमको सुख करता है। ये सारे चीज को हमको, ये सारे जो चीज हमको चेंज करनी है, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी। अगर हम ट्राई करते हैं तो होगा। तो मैं कई कई प्रवचन में कोई साधु के मुख से ये भी सुना था कि जब हम सोच लिए, खाली हम खाली सोच लेते हैं कि भाई ये चेंजेस हम में लानी है, मैं लाऊंगा और मेरा मन है कि मैं ये सारे चेंजेस लाऊंगा, मैं वट एवर, मैं भगवत गीता को रेगुलरली वो उसको रीडिंग करूंगा, और I'll try to follow whatever things are mentioned in भगवत गीता सिंसियरली। बस खाली ये सोच लेंगे, then he will show us the direction। खाली हमारे पास खाली वो चीज करना है कि हमको खाली सोचना है कि नो, आई वांट टू गेट द रियल हैप्पीनेस। I don't want to like get entangled with all this material happiness, so called material happiness जो 2 दिन की है। the real happiness लानी है। तो ऐसे करेंगे तो ये सब सारे चीज के पीछे हमारी माइंड है, हम कैसे सोचते हैं। वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस। ऐसा नहीं कि हमारे सेंसेस को पूरा बंद कर दें, कुछ नहीं, बिल्कुल वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई मतलब मिस्टिक योगी जो हैं अपने सेंसेस को रोक देते हैं, कुछ नहीं कर पाए, वो नहीं होता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं होगा, ये कल होगा किसी के साथ, लेकिन मेरे जैसे, हम सब जैसे बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इसलिए ये कली युग में ये लोग बोलते हैं कि ये दिस युगा, कलियुगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ये सब चीज नहीं हो सकता है। जो जो भगवत गीता बोला गया, जो ये सारे डूज एंड डोंट्स की बात हो रही है, ये कलियुगा में नहीं हो सकता। अगर अगर ये दिमाग, ये चीज, ये थॉट्स हमारे दिमाग में आती है, देन ये सही नहीं है। क्योंकि भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 12वीं अध्याय में बोला गया है कि कलेर दोष निधे राजन, जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजत। तो कलियुग की वो खूब ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कलियुग की। तो कैसे कर रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, माय डियर किंग, ऑल्दो कलियुगा इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। यहाँ पे हम दूसरों के फॉल्ट देखते हैं, अपने फॉल्ट भी करते जाते हैं, दूसरों की फॉल्ट भी देखते हैं, और ये इट्स लाइक एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स, ट्रू, एंड देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज, सिंपली बाय चांटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। भागवतम में इसे लिखा हुआ है, सिंपली बाय चांटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम मैटेरियल बॉन्डेज एंड बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम। ट्रांसेंडेंटल किंगडम मतलब भगवान की धाम। तो वहां पे जाए, तो वहां पे, तो that is like the eternal place, will get eternal happiness there। So what is the formula? To chant Hare Krishna महामंत्र। सो हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर कली संतरण उपनिषद में भी बोला गया है कि हरे कृष्णा, जो हरे कृष्णा महामंत्र, वो क्या है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम नत पर तोरोपाय सर्प वेदेषु दृश्यते। Hare Krishna Prabhu, I think PPT is not showing. So can you please share your PPT again? It is not visible. No, actually PPT क्या हुआ? Please just one cancel and then again you please show the PPT, Prabhu. I think it is. Now it is visible. Yes, Prabhu. Now it is visible. Visible? Yes, Yes, Prabhu. Now yes. it is visible. Yes. Yes, visible. Prabhuji, visible. Continue now. Yeah, same thing I was saying actually।
Yeah, purifying. Yes. What Prabhupada has said, the recommended method for controlling the mind is loudly chanting and hearing Hare Krishna Mahamantra. And कल ही संतरण उपनिषद में जो मैं बोल रहा था अभी कि उसमें बोला गया कि हरे जो महामंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र व्हाट इट इज लाइक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम्न कलिकल्मषनाशनम नत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. So the translation says the 16 names of Hare Krishna Mahamantra, 16 names are there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So total 16 names are there. They destroy all inauspiciousness of the age of Kali. Any kind of inauspiciousness that is they get destroyed by this chanting of Hare Krishna Mahamantra. And this is the conclusion of all Vedas. This is the conclusion of all Vedas. Sarva Vedeshu Drishyate. So the simplest way to control our mind is by chanting Hare Krishna Mahamantra. If we'll go through the slides, then what Prabhupada has said here, let me just read out. Even if the mind is diverted while chanting Hare Krishna Mahamantra, it will be forced to concentrate on the sound vibration Krishna. And it is not necessary to withdraw the mind from everything. It will automatically withdraw. हमको लगता है कैसे हम अपना मन को फिक्स करें. It will automatically be fixed. Gradually it will come because it will be concentrated on the sound vibration. And benefits of controlled mind. So Shastra says the cool mind, peace, clear intelligence, purified senses, better concentration and memory, more efficient. So many all good things only happen to us. And the only way to prescribed way is by chanting Hare Krishna Mahamantra. So if I'll just go through the slides, so some great this is chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, and we have that is the only formula. And what do the major religions say about chanting the holy names of the Lord? So let's just read out. Like Christianity says, Christ glorified the Lord's holy name by saying, "Our Father who art in heaven, hallowed by the name." Sikhism says, Guru Nanak prayed, "In the ambrosial hours of the morning, I meditate on the grace of the true name." True name means Jagannath only. Islam says, like Muslims repeatedly chant the sacred name of God, Allah. Buddhists also they do practice a repetition of the name of Lord Buddha. So in every religion you can say like there is like chanting of the holy name. And in Sanatana Dharma, this holy names of the Lord in the form of mantra, and what mantra exactly is man plus tra. Man means mind and tra means deliver. Mantra is such thing which can deliver mind from from out of all the uncontrolled thing, out of say the miseries, and that will give us direction towards the real happiness. And many personalities, if we all will listen to them, like he's the engaged director in France, some company, what he says, like everything started happening for me when I began chanting Hare Krishna. He's a French person. Albert Bruce Ford, the owner of Ford Motors. What he says, chanting Hare Krishna has made a tremendous impact in my life. N.D. Desai, leading Indian industrialist, what he says, like, I have been chanting Hare Krishna for many years and I have never found anything more pleasurable. So just it will just keep on like going through all the great personality. Here is a Dutch model, and what she says, and chanting helped me give up all bad habits and it changed my vision of things. So many great personalities have given their testimonies of this thing. I will say testimonies, their experiences, their feelings. So what this person says, that chanting makes me more perspective,
more in harmony with everything and everyone around me. So here, when we say like it's the end of the slide, so to come out of the slide. So the final thing, the conclusion of this today's session, I'll say, with reference to the Shastras, particularly like all the Shastra, Bhagavad Gita, then this Kali, Santaran, Upanishad, Bhagavatam, everywhere it is mentioned like Harinam is the most important thing. It's the only thing that we need to follow, like chanting of Hare Krishna Mahamantra. So in today's session, if you all are there, so what we have thought of, like we'll chant all together. So together we'll chant loudly wherever you are sitting now at your home. So from your respective places, we all will chant together this Hare Krishna Mahamantra that we usually follow, and we know like most of you also must be like chanting or following this philosophy at your respective homes also. So today we had thought of like after discussing on this control of mind by chanting Hare Krishna Mahamantra, so let's just pray together and let's just chant together this Hare Krishna Mahamantra. So before that, I'll show you like we usually do this chanting of Mahamantra using this Jap Mala. So I'll show you this Japmala. It has 108 bits, and we do like if one round we complete, then like it's 108 times Hare Krishna Mahamantra we say, and like this we repeat it for 16 times in a day. It is recommended 16 times in a day. And if somebody says like why 16, because in Chaitanya Charitamrita and in many other scripture also it is means this Sankhya, this number philosophy, Sankhya philosophy is also like it has a big role, and it is also highly essential. So it is recommended, and many acharyas has recommended it. Chaitanya Charitamrita, the Lord Chaitanya Mahaprabhu himself also said like 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra is the recommended way to get out of this the miseries in Kali Yuga. So we just follow them, So we'll chant this mantra all together, and here so we'll ask Prabhuji to like play the tune of Hare Krishna Mahamantra by Srila Prabhupada, and with his tune we all will chant together loudly at our respective location, respective places, respective homes. So let's loudly, lovingly, and sincerely chant one round of Hare Krishna Mahamantra, like 108 times Hare Krishna Mahamantra. So Prabhuji, you want to add something, or you can play the tune directly? Hare Krishna. So we would like to thank you, Prabhu, for your wonderful session. So we would like to everybody, so you can unmute your audio so that together we can chant. So Prabhu, can you please show your chanting beats? Yeah, sure. So I am requesting to all of you. So all of you can just unmute your chanting beats and unmute your audio, and we will share one audio, and that is a mantra meditation sound vibration of a very famous acharya, the founder of ISKCON Society, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So the mantra will be chanted in that audio, and together we can chant, or we can pronounce that mantra with that audio, and also repeatedly we will try to uh, share the skin of that mantra, as Prabhu told that the mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So before that, so Prabhu can tell something about the uh, special another also one mantra that is So let me tell you
things. So while chanting Hare Krishna Mahamantra using our beats, so what should be our हम क्या सोचना चाहिए, हमारी thoughts कैसे होनी चाहिए? Actually, this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Krishna, Rama, these two names are there repeatedly, and Hare term is Hare. The name Hare is also used there. Hare means like राधा रानी जो है, जो कृष्णा के बहुत सबसे प्रिय राधा रानी. तो राधा रानी का दूसरा नाम है हरा. तो actually when we say Hare, we are actually addressing Radha Rani. So we are praying to Radha Rani कि हमारे मन जो है, हमारे मन को कृष्णा के लोटस, प्लीज एंगेज आवर माइंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. ये चीज हम प्रे कर रहे हैं राधा रानी को कि हम, और जब राधा रानी बीइंग द मोस्ट क्लोजली एसोसिएट ऑफ तो ऐसा तो मैं बोलेंगे मतलब भगवान के इतने प्रिय हैं. जब राधा रानी बोलेंगे, मतलब हम प्रे कर रहे हैं राधा रानी को, राधा रानी रेकमेंड करेंगे कि भाई ये आपके शरण में आना चाहते हैं, then Krishna will definitely listen to us. So it's their part, but our part is like to chant devotedly, lovingly this Hare Krishna Mahamantra, and focus is Radha Rani को pray कर रहे हैं to fix our mind at the lotus feet of Lord Jagannath. And इसमें जो 108 बीट है, Hare Krishna. yes प्रभु जी, बोलिए. So please, can you please tell about the प्रणाम मंत्र पंचतत्व? राइट. और ये मंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से पहले हम पंचतत्व की प्रणाम मंत्र भी करते हैं. तो पंचतत्व की प्रणाम मंत्र क्यों करते हैं कि ये मंत्र जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, देखो जब माइंड हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो हमारे माइंड में those who are actually chanting and those who are yet to chant start this process. So everybody will experience or say everybody might have experienced already. तो दिमाग में बहुत सारे चीज जो आने लगते हैं, जो पहले नहीं आते थे वो सारे चीज आने लगे. तो समवेयर अदर हमसे कहीं अपराध ना हो जाए, तो इसीलिए हम पंचतत्व की प्रणाम मंत्र पहले उच्चारण करते हैं. Then after reciting this pranay mantra to पंचतत्व means चैतन्य महाप्रभु and his associates. So उनको प्रणाम मंत्र रिसाइट करने के बाद हम हरे कृष्णा महामंत्र 108 टाइम्स करते हैं. तो then it completes one round of japa. So जो पंचतत्व महामंत्र है, प्रभु जी can show that on the screen. Is it visible? पंचतत्व की प्रणाम. So let everyone also recite that, and then we will start. Is it visible? Can you please check? Is it visible? Yes. So this is the pranam mantra of Panchatattva. So before we chant this Hare Krishna Mahamantra, we do chant this mantra once, and then we chant Hare Krishna Mahamantra for 108 times. That completes one round, and like that we do 16 rounds in it. So that is recommended. So let's all together chant this pranam mantra. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. And then let's start our chanting. Prabhuji, you can play the tune, Hare Krishna Mahamantra tune of Prabhupada. Yes, Prabhu. I request everybody at your respective places, please unmute yourself and let's chant together. And we'll chant with Prabhupada's tune only. So that will be more beneficial to us. And we should not think honestly like how much beneficial it will happen to us or not. This is just recommended. This is recommended to us for this Kali Yuga, and we'll just follow it. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Krishna